let us discuss chapter number 1 of class 9. The name of the chapter of class 9 is some aspects of French Revolution. हम लोग यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने फॉरवर्ड पढ़ा था, यानी चैप्टर नंबर 1 से पहले एक चैप्टर है जिसको हम लोग फॉरवर्ड कहते हैं. एंड इन दैट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड दैट what was the condition of the modern age of Europe. Okay, modern age of Europe. Why? Because that topic we discussed to clarify the European history of modern European history. उसको इसी वजह कर पढ़ना पड़ा था. आइए तो हम लोग देखते हैं, हम लोग का टॉपिक जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन है. तो आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन जो हुआ, ये पीरियड हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन का. ओके, 1776 टू 1783. आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था. आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंट था, बहुत खास था, बहुत इंपॉर्टेंट था. ओके, व्हाई? बिकॉज इट हैड ब्रॉट मेनी चेंजेस in every sphere, political sphere, social sphere, okay, every sphere it had brought great changes. Okay, now one term has been used here, revolution. Okay, revolution means a sudden change. Revolution means a sudden change. So after the French Revolution we found the social structure, okay, the transformation of social structure from one structure to another structure. It transformed. Okay, the existing system of the social structure absolutely changed. Okay, absolutely changed. Okay, so इस तरह हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ओके एक पूरा सिस्टम जो एग्जिस्ट करता था फ्रांस में ऑन द मीन्स एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में जो एग्जिस्ट करता था, तो इट चेंज्ड. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन appeared in France. Okay, transformation appeared in France. Another thing we will see that 18th century means at the end of the 18th century the society of France was called ancien régime. It was called ancien régime, ANCIEN, ancient, REGIME, ancient régime. The society of France in the last phase of 18th century was called ancient regime. Ancient, ANCIEN, not T. Ancient regime, ancient regime it was called. Okay, so we see that in ancient regime, okay, what was the condition of society? Society का क्या structure था? तो society was divided into 3 parts. We have already seen that in Rigvedic period. Okay, in the Rigvedic period, so our society was divided into 4 parts: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudras. Okay, Brahman's duty was in religious duty they used to do. Okay, Kshatriya they were involved in martial art. Okay, Brahman, Kshatriya, Vaishya they were involved in business, and they also used to serve the society. Okay, so and number 4th we are not discussing. So here also on the eve of the French Revolution, ancient regime में society was divided into 3 parts. Okay, that is called first state, second state and third state. Okay, तो first state में कौन आते थे? क्लर्जी. Okay, second state में कौन आते थे? aristocracy. And number 4th में आते थे बोर्जुइजा. पहला में आते थे क्लर्जी. ओके, क्लर्जी में पादरी. ओके, नंबर 2 में एरिस्टोक्रेसी. ओके, एरिस्टोक्रेसी आला, बड़ा मर्तबा वाला, ओके, रॉयल फैमिली वाला एरिस्टोक्रेसी में आते थे. नंबर 3 में है नंबर 3 दैट इज बोर्जुइजी. बोज, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बोर्जुइजी. ओके, बोर्जुइजी. ओके, they were in 3rd category. So first and second category को बोलते थे privileged. privileged और इसको बोलते थे unprivileged.
ओके, तो हम लोग क्या कहते थे, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिविलेज्ड क्लास, और थर्ड स्टेट को हम लोग बोलेंगे, थर्ड स्टेट जिसमें बोजीबाजी, ओके, बोजीबाजी, इन लोगों को बोलते थे हम लोग, वो किस क्लास में थे, थर्ड स्टेट में थे। ओके, तो ये सोशल स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद ये जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के जो लोग जिनको हम लोग प्रिविलेज्ड बोले, ओके, इन लोगों को ये लोग कितना टैक्स देते थे, 4%। ये लोग कितना टैक्स देते थे, दे यूज्ड टू पे 4% टैक्स, ओके, एंड unprivileged bourgeoisie, okay, they used to pay, they had the burden of paying the tax, that is 96%. 96% ये लोग टैक्स दिया करते थे, ओके, और जितना भी एग्रीबल लैंड, ओके, गुड लैंड एंड फर्टाइल लैंड, दे यूज्ड टू पॉजेस, इन लोगों के पास क्लर्जी एंड एरिस्टोक्रेसी, जिसको हम लोग प्रिविलेज्ड क्लास कहते हैं, इन लोगों के पास अच्छे मीन्स गुड लैंड, cultivable land, fertile land इन लोगों के पास था, but they never paid tax, okay, they paid only 4% of the tax, because they said that they used to do, clergy said that they do very important work, that is the work of religion, okay, and aristocracy said that no, we serve the country by participating in the war, okay, that is why we would not pay the tax. So they used to pay only 4% tax, and total tax burden was on the head of, or on the shoulder of, bourgeoisie, okay, bourgeoisie. So this was the this total structure, okay, of at the end of the 18th century, that is called ancient regime. Ancient regime का ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर। अब आइए हम लोग जो क्वेश्चन होगा, political prison, why it was called political prison, okay, this was said, this was said means before the French Revolution, France was called, okay, a political prison, okay, सियासी जेल कहलाता था। Why? By whom? Georges, Georges Lefebvre called before the French Revolution, France was called a political prison by George Lefebvre, okay, ऐसा इन्होंने क्यों कहा? इसलिए कहा पॉलिटिकल प्रिजन क्योंकि एंशियंट रेजिम में जो राजा होते थे, ओके, द किंग यूज्ड टू थिंक हिमसेल्फ एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। किंग अपने आप को कहता था कि मैं खुदा का नुमाइंदा हूं, ओके। किंग डिड नॉट हैव एनी राइट, और किंग वाज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। किंग जवाबदेह नहीं था किसी का, एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द किंग वाज द लॉ। किंग के जुबान से निकला वो आखिरी लफ्ज, ओके, दैट वाज द लॉ, ओके, दैट मीन्स दैट वाज द कंडीशन। किंग समझता था कि हम जमीन पर आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ओके, मैं किसी को जवाब देने वाला नहीं हूं, और जो किंग कहता वही लॉ होता था, ओके। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज करप्ट, ओके, ऑल द ऑफिशियल्स वे इनएफिशिएंट, ओके, इनजस्टिस प्रिवेल्ड एवरीवेयर, हर जगह नाइंसाफी थी। दैट वाज द कंडीशन ऑफ द एंशिएंट रेजिम बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो एंशिएंट रेजिम था, ओके, उसका कंडीशन ऐसा था, ओके। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर कोई कुछ द पीपल ऑफ फ्रांस, ओके, अगर वो लोग सस्पेक्ट करते, अगर वो लोग कुछ बोलते किंग को, तो उनके ऊपर आफत आ जाता। क्या आफत आता? देखिए, था ओके, लुई द 15 के टाइम में 1,50,000 रिट इशू हुआ। रिट मीन्स आप समझ जाइए एक तरह से वारंट, ओके, काइंड ऑफ अ वारंट। तो लुई द 15 फ्रेंच रूलर थे, ओके, इनके टाइम में
जिस पर भी शक किया जाता, वन हु वेयर सस्पेक्टेड, वन हु वेयर डाउटेड, अगर लगता कि नहीं यही वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा लगता, इफ इट वाज सस्पेक्टेड, तो उसके खिलाफ अगेंस्ट हिम रिट वाज इशूड, रिट वाज ग्रांटेड। रिट वाज अ काइंड ऑफ अ मींस इट वाज अ काइंड ऑफ अ वारंट, अरेस्ट हो जाए, अरेस्ट वारंट। ओके, तो कितना अरेस्ट वारंट इशू हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लुई XV? 1,50,000। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लुई XVI, ओके, लुई XVI के टाइम में अबाउट 40,000 रिट वाज वेयर इशू, 40,000 रिट इशू हुआ और उनको अरेस्ट किया जाता। और ये जो रिट जो वो लोग इशू करते थे, इसको बोलते हैं लेटरी डी कैचेट, लेटरी डी कैचेट बोलते हैं इसको, लेटरी डी कैचेट, मतलब इसका वो सील्ड लेटर। In French, it is called lettre de cachet. Okay, and in English meaning of lettre de cachet is sealed letters. Okay, sealed letter, इसको sealed letter कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के खिलाफ against anyone, if lettre de cachet was issued, okay, that means he would be imprisoned, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। और कहाँ रखा जाएगा? फोर्ट ऑफ बैसल में उनको डाल दिया जाएगा। तो लुई XVI के टाइम में 1,50,000 लोगों को फोर्ट ऑफ बैसल के जेल में डाला गया। और लुई XVI के टाइम में 40,000 रिट इशू हुआ, जिसको लेटरी डी कैचेट बोलते हैं, विदाउट एनी ट्रायल। अगर किसी को सस्पेक्ट अगर किसी पर सस्पेक्ट है, इफ एनीवन इज सस्पेक्टेड, ओके, ही वुड बी अरेस्टेड एंड विदाउट एनी ट्रायल, बगैर किसी मुकदमा का, ही वुड बी पुट इनटू द जेल, उसको जेल में डाल दिया जाएगा एंड ही वुड नॉट गेट रिलीज, और उसको रिहाई नहीं मिलेगी। ओके, सो ये जो सिस्टम जो था, ओके, ये जो सिस्टम था, इसी सिस्टम को हम लोग के जो फ्रेंच हिस्टोरियन है जॉर्जेस लेफेब्रे, इन्होंने क्या कहा कि दिस कंडीशन वाज लाइक बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी इनकलाब से पहले जो कंडीशन है ये जो था, ओके, इसको जॉर्जेस लेफेब्रे ने क्या कहा? पॉलिटिकल प्रिजन कहा, पॉलिटिकल प्रिजन कहा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इकोनॉमिक एरर्स, म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर्स। म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर्स, व्हाट इज दिस म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर्स? लेट अस सी। Museum of Economic Errors, actually this term was given by Adam Smith. Adam Smith, he was a British economist. He was a British economist. Okay, Adam Smith, in his book, Wealth of Nation, this term म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर्स, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो इकोनॉमिक कंडीशन था, इकोनॉमिक, ओके, माशी जो कंडीशन था बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओके, सो एडम स्मिथ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन ने क्या कहा है उसको, उस सिचुएशन को क्या कहा है? उस सिचुएशन को कहा है म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर्स। ओके, म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर्स कहा है। ओके, किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम लोगों को पता है कि फ्रांस का मींस द फ्रेंच सोसाइटी बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जैसा भी हमने लिखा था, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी है, सेकंड स्टेट में एरिस्टोक्रेसी है, और थर्ड स्टेट में बोर्जुइजा। ओके, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि बोर्जुइजा के कांधा पे, ओके, कितना परसेंट का वो टैक्स उन लोगों को देना था? 96% टैक्स दे यूज्ड टू पे। 96% ऑफ द टैक्स they were asked to give 96% tax, और privileged class यानी clergy and aristocracy, they used to give only 4% tax, 4% tax. Okay, but they, as I told you, they possessed, okay, they seized, they seized, or they had, okay, about good properties and agreeable land they had. Okay, but they did not pay the tax. Okay, they did not pay the tax. Neither your clergy nor aristocracy, they did not pay the tax.
Okay, that is why इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कि when Louis XVI forced the aristocracy to pay the tax, so aristocratic revolt was started. That was the beginning of the revolt of 1857. That was the beginning of the French Revolution. Okay, तो आइए और हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसा कंडीशन था, पूरा जो टैक्स का बोझ था, ओके, द बर्डन ऑफ द टैक्स दैट वाज ऑन द वीक शोल्डर ऑफ बोर्जोइजी. ओके, बोर्जोइजी दैट इज अनप्रिविलेज्ड क्लास और नॉन प्रिविलेज्ड क्लास. ओके, तो उस जमाने में जो सिस्टम जो था, उस जमाने में कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं था, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं लाया जा रहा था. और तो और फ्रांस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लुई XVI, okay, he involved in the American War of Independence. वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1776 में शुरू हुआ, उसमें इन्वॉल्व हो गया विदाउट एनी राइम्स एंड रीजन. ओके, सो क्या हुआ कि इसको फॉरेन कंट्री से, ओके, he had to borrow the loan from the foreign country. Okay, and the tax burden increased. Okay, the tax burden on the bourgeoisie increased. Okay, but aristocracy and clergy, they raised their hand, they surrendered that they would not pay the tax. Okay, that is why this situation is compared with Museum of Economic Errors by Adam Smith. Okay, so ये दो टॉपिक आज डिस्कस किए. If you have any question, please drop your question in my message box. Thank you very much.